Good morning class. Today we start the class 8 Geography chapter 4 chapter Agriculture, and this is our fifth lecture, and our first topic is agricultural development. Agricultural development. So let's see what is agricultural development. Agricultural development refers to efforts made to increase farm production. So let's say what is the definition of agricultural development. So agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demands of increasing population. So class, basically we know that agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demands of increasing population. So basically हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए हम जो भी इंक्रीजमेंट करते हैं इन फार्म्स उसी को हम क्या कहते हैं agricultural development. So this can be achieved in many ways such as increasing in cropped area. So basically agricultural development में we can use so many parts regarding. First one is or we can call it having achievements of agricultural development. So in this topic, achievements means or how to achieve, or if we can call it how to achieve, or you can call it having like how to achieve the agricultural development. So first requirement is increasing the cropped area. First requirement is requirements of the agricultural development. So crop area, the number of crops grown. Second one is the number of crops grown. Third point requires is improving irrigation facilities. Improving irrigation facilities
fertilizers and fifth one is HYD seeds, high yield variety seeds. So class, these are the major 5 points regarding how to achieve the agricultural development. एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं? The first step is increase the crop area. जिस एरिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं उस एरिया को हमें क्या करना है? We have to increase that particular area, or we can call, we have to increase the cultivable land. And second one is the number of crops grown. So basically in many countries we use mixed cropping or multiple cropping in a same field to get the more earned from that particular field. And third one is improving irrigation facilities. So you know that the irrigation facility is the more required in more important factors for production of a crop. So irrigation is the most important in agriculture. And the fourth one is use of fertilizers or pesticides or insecticides. So basically there are so many chemicals which comes under fertilizers, pesticide or insecticide. So we need to protect our crops from pests or insects. So we often use pesticides and insecticide to kill that pest which are destroying our crops. And last one is the high yield variety seeds. We need a high yield variety seeds for more production from the same plot of land. So mechanism of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase the food security. So means all this includes in the food security. So this process is used to maintain the food security in the country. Food security refers, or food security means every person should get the at least 2 time meals of a day. So कह सकते हैं इन सब का उद्देश्य यही है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है हमारी कंट्री में उनको 2 वक्त का खाना मिल सके. So agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Large holdings are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. With the help of 2 case studies of farms, one farm in India and the other farm in USA, let us understand about agricultural development in developing and a developed country. So basically we have studied that in India basically there are 2 types of farming is done. First one is subsistence farming. Subsistence farming is done for self consumption, and intensive subsistence farming is done to meet the requirements of the growing population. So let's take a case study about the developing country and developed countries. So let's see a farm in India. So let's see, there is a small village, Adilabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchased high yield varieties of seeds from the market every alternative years. The land is fertile and how he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. So basically we are studying a case study of a village Adilabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. There is a farmer named Munna Lal and he has 1.5 hectares of the land, and he
practice intensive farming or subsistence farming, and he crops mainly 2 crops in a particular year, and he purchase high variety seeds in every alternate years, which हर साल वो जो है एक हाइब्रिड सीड खरीदता है और एक साल में 2 ही खेती करता है. So the farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. He takes a tractor on rent for plowing his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing. There is a tube well in nearby field which takes on rent to irrigate his fields. So basically ये जो फार्मर है वो बहुत ही मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर. वो अपने फ्रेंड्स से, अपने एल्डर से एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी हैं उनसे वो क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि किस तरह का क्रॉपिंग जो है उसके लैंड पे करना चाहिए. एंड ही पर्सनली यूज ट्रैक्टर्स, टेक ट्रैक्टर्स ऑन रेंट्स एंड ट्यूबवेल्स इन फॉर रेंट्स टू इरिगेट द field and tractors to plow the particular land. So Munna Lal also had 2 buffaloes and few hens. He sell milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society which also advise him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and the artificial insemination. So basically हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फार्मर है मुन्ना लाल, ये जो है बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर. इसके बाद मुन्ना लाल ऑल्सो हैज बफलोज एंड फ्यू हैंड्स, जिसमें वो मिल्क जो है वो क्या करते हैं, सेल करते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स में. कोऑपरेटिव स्टोर्स में वो जो कि नियर बाय सिटीज में है. और इसके बाद इसकी ही इज द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइस इन द टाइप ऑफ फॉडर. तो जो सोसाइटी में ये बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी से ये भी बताया जाता है कि उसमें किस तरह का चारा जो है या फिर फॉडर जो है वो एनिमल्स को देना चाहिए जो कि बेनिफिशियल है फॉडर दैट पर्टिकुलर एनिमल्स. इसके बाद ही टेक सो मेनी सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ स्टॉक एंड टू फार्म द एग्रीकल्चरल लैंड. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज. समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक or the agricultural cooperative society to buy HYB seeds and implements. So क्या करते हैं, कभी कभी जो है मुन्ना लाल जो है वो क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का हेल्प लेते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड समटाइम्स ही आल्सो टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और द कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने खेतों के लिए बहुत ही अच्छे किस्म के बीज खरीद सकें. और एंड ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड नियर बाय टाउन. फिर वो क्या करते हैं, वो अपने खेतों से जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या करते हैं, नियर बाय जो ग्रेन्स मार्केट है या फिर फूड मार्केट्स है वहां पे वो जा करके सेल कर देते हैं. सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्म्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज, दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम. सो समटाइम्स क्या होता है कि जब वो अपने क्रॉप्स को मार्केट में सेल करते हैं तो उनको उतना दाम नहीं मिल पाता है जितना कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो मजबूरी में या फिर फोर्सफुली उस पर्टिकुलर ग्रेन को सेल कर देते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है. इसके लिए इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके किसको, फार्मर्स को, ताकि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही जल्दी डिके नहीं हो या फिर पैरिश नहीं हो. सो वी हैव स्टडीड द फार्म इन इंडिया. सो इंडिया में वी हैव नो दैट मुन्ना लाल इज डूइंग सो मेनी थिंग्स टू grow and preserve the crops. So let's see the case studies of a developed country, a farm in the USA. A farm in the USA. अब देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में किस तरह से फार्मिंग होती है और वहाँ पे कौन कौन से न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज की जा रही है. द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्मर. तो कह सकते हैं कि जो खेत है अमेरिका में वो बहुत ही बड़े हैं कंपैरिजन टू इंडिया. सो ए टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 एकर्स.
हेक्टर्स। सो हम कह सकते हैं कि यूएसए में एक नॉर्मल अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड लें तो वो कितने हेक्टर्स का है, अबाउट 250 हेक्टर्स। द फार्मर्स जनरली रिसाइड इन द फार्म, तो वहाँ के जो फार्मर्स है वो कहाँ पर रहते हैं, एक्चुअली खेतों में ही रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड सुगर बीट। जो हॉर्न ए फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए। सो बेसिकली कह सकते हैं वहाँ के फार्मर जो है उसको उस खेतों में ही रहते हैं और वहाँ पे मेन क्रॉप्स जो है वो लगभग ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। वहाँ पे एक फार्मर है जिसका नाम है जो हॉर्न, वो कहाँ पे रहता है, मिड वेस्ट एशिया में। इन योवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड। वो कहाँ पे रहता है, यूएसए में योवा स्टेट्स में, जहाँ पे उसके पास 300 एकर्स ऑफ लैंड है। ही ग्रोस कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप्स। सो वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें कितना वहाँ पे उसको वाटर चाहिए जो कि उस क्रॉप के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। इसके बाद adequate measures are taken to control pests that can damage the crops। इसके बाद वो बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द pests to harm their crops, and then from time to time he sends the soil sample to soil testing laboratory to check whether the nutrients and is sufficient or not। सो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भेजते हैं ताकि ये पता चल सके कि वो जो सॉइल है वो कितना फर्टाइल है या फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितनी कम है या फिर कितनी ज्यादा है। द रिजल्ट हेल्प जो हॉर्न टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। ये सारा का सारा जो टेस्टिंग है उससे उनको ये पता चलता है कि मुझे किस तरह का साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए क्रॉपिंग करने के लिए। इसके बाद हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड्स। सो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है तो वहाँ पे उनके फार्म्स में ही कंप्यूटर्स लगे हैं जो कि कनेक्टेड है सीधे सैटेलाइट से, और वो जो सैटेलाइट है उस पर्टिकुलर फील्ड का जो है पिक्चर भेज देता है कि किस तरह के डिजीजेस जो है वो उस क्रॉप्स में लगे हैं और उनको खत्म करने के लिए किस तरह का केमिकल्स जो है वो यूज करना है। इसके बाद दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेदर दे आर रिक्वायर्ड। इससे उसको पता चलता है कि उस फार्म्स में किस तरह के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स चाहिए उसके क्रॉप्स के लिए। ही यूज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। वो यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न मशीन्स यूज करते हैं जैसे कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म एग्रीकल्चरल। इसके बाद ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर लैंड से वो क्या करते हैं उसको एक सोफिस्टिकेटेड या फिर ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में उसको स्टोर करते हैं ताकि वो बहुत ही जल्दी पैरिश नहीं हो, और जो सरप्लस बच जाता है उसको मार्केट में जो भी एजेंसीज हैं उसमें वो सेल कर देता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। तो वहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह वहाँ पे खेती करते हैं, ना कि एक फार्मर्स की तरह। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ए फार्म इन इंडिया एंड ए फार्म इन द यूएसए। सो बेसिकली इन इंडिया some farmers are using traditional method of agriculture. Traditional method of agriculture, but in USA scientific method is used to grow crops. So basically in USA scientific method is used to grow crops, and इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया और अदर कंट्रीज में ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है बिकॉज दे आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू यूज एग्रीकल्चर, बट इन इंडिया
still there are some farmers who are still using the traditional method for growing their crops. So basically we can see in this page number 47, figure 4.17. So you can see that for pesticides and for insecticide, aeroplanes are used to spread these chemicals on over their land by aeroplanes. So basically हम कह सकते हैं कि aeroplanes are used to pesticides or insecticides spray on their fields, क्योंकि ये जो लैंड्स हैं बहुत ही बड़े हैं और मैन्युअली ये कर पाना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो क्या करते हैं यहाँ पे एरोप्लेन्स को यूज करते हैं ताकि जो भी केमिकल्स है उसको उसके फील्ड्स में छिड़काव कर सके. सो दिस आर द टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ए डेवलपिंग कंट्री एंड ए डेवलप्ड कंट्री. सो क्लास योर चैप्टर एंड्स हियर एंड ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू complete their exercise questions. Thank you.